Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's lecture. And I told you that we are going to start today the memory part. Okay, when we talk about the memory, so we can divide the memory in different portions, in different parts. Starting off with the memory that is called the primary memory. Then we are having another memory that is called secondary memory. Then we are having another memory that is called thank you Labik for identifying. Sorry, I forgot to share my screen. I was teaching. Sorry. जी मैंने ऑन कर लिया बेटा. So I was telling you भाई मेमोरी के अंदर हमारे पास we are having different types of memories. One type of memory is called the primary memory. We are having another type of memory that is called secondary memory, and the last memory that is called offline storage. So when we are dealing with primary memory, we are having two further types in the primary memory. One is called RAM and the other one is called ROM. ठीक है. And when we are dealing with the secondary memory, again we are having two types of secondary memories. One is called hard disk drive. This is same as O levels बेटा. मेजर पार्ट हमारा O level जैसा ही है, कुछ चीजें एडवांसमेंट आएंगी सिर्फ. एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड SSD. That is solid state drive beta. So these are the both these both are the examples for secondary storage. And when we are talking about the offline stuff, so offline में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, like CD, DVD, Blu-ray, XD card, SD card, USB. ये सब चीजें हमारे पास क्लास दे आर फॉल इन ऑफलाइन स्टोरेज बेटा. ये सब हमारे पास फॉल करती हैं इन ऑफलाइन स्टोरेज. नाउ
ये सारी डिवाइसेस हमें वन बाय वन करके पढ़नी है, बट दीज डिवाइसेस आर नॉट फिनिश्ड ओवर हियर, अभी और भी हमारे पास यहाँ पर हैं. There are two types of RAM that we will be studying. One is called SRAM and the other one is called DRAM beta. And when we talk about the ROM की हमारे पास multiple types हैं. The first basic type is simple ROM, then PROM, then EPROM, then EEPROM. ये सारी टाइप्स हमें पढ़नी है फॉर ROM बेटा. So in short, this is the summary for the chapter that is called memory. ये सारी चीजें हमें इसके अंदर along with different many definitions, we need to cover all the stuff. Moving ahead, starting with RAM. RAM से start करते हैं हम लोग यहाँ पे. That is random access memory. और इसकी बच्चों वाली बातें मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ टेम्पररी मेमोरी, volatile in nature, both read write operations can be performed. ठीक है. So this was about RAM. एक और बात आप लोगों को RAM के बारे में पता होनी चाहिए. All data is removed when we turn off our system from RAM. तो आपका जितना भी डाटा होता है, all the data is being removed from the RAM जब आप अपना सिस्टम क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं बेटा. नाउ असल बात के ऊपर आते हैं. एंड द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट इज सॉफ्टवेयर इन RAM. What sort of softwares we are having in RAM? Anyone? कोई बच्चा मुझे बताएगा? You can write to Mac Chat बेटा. What sort of softwares we are having in RAM? किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास इन RAM? Anyone? ये तो मुझे टाइप बता रहे हो भाई. हैदर, you are telling me the type. DDR. Let's see. देखिए, आप लोग को कभी कोई गेम खेलना होता है, अच्छा किसी अच्छे गेम का नाम बता दे जो पीसी गेम हो, अच्छा हो. ये तो बता सकते हैं ना आप लोग.
कोई अच्छा पीसी गेम का नाम बताएं जो मतलब रैम ऑक्यूपाई करता हो। अच्छा, मैंने डोटा नहीं खेला कभी, मुझे डोटा खेलना है। सीएस लबी, सीएस तो आई थिंक इतनी रैम कंज्यूम नहीं करता, सीएस चल जाता है हर जगह। हाँ, डोटा इज अ गेम दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ मेमोरी। GTA 5 परफेक्ट। सीएस, रेड, हाँ बिल्कुल, रेड डेड रिडम्पशन 2, बिल्कुल हैदर, बड़ा क्लासिक गेम है ये वाला भी। अब देखिए ये गेम जो है ना आपके पास, GTA लेके चलते हैं। GTA 5 ये बोलता है भाई जब आप इसको पीसी के ऊपर ऑन करो ना, आई नीड एटलीस्ट 16 GB रैम। क्यों भाई, इसको रैम क्यों चाहिए, इस गेम को रैम क्यों चाहिए? बिकॉज क्लास, लेट मी शो यू अ डायग्राम। ये गेम्स, ये सॉफ्टवेयर्स, इनको रैम क्यों चाहिए होती है? लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, सिंपल डायग्राम, so that now your understanding will be clear then. Let's assume this is your secondary memory. This is your RAM and this is your CPU. Whenever you load a game, जब आप गेम लोड करते हैं तो वो गेम आके सेकेंडरी मेमोरी से जाता है, आपकी रैम के अंदर आके लोड होता है। कहां से आता है? फ्रॉम योर सेकेंडरी स्टोरेज टूवर्ड्स योर रैम बेटा। अब जब वो रैम, जब आप गेम रन करते हैं तो वो रैम से उठकर जाता है टूवर्ड्स सीपीयू, एंड सीपीयू के पास यहां पे एक अपनी मेमोरी होती है। वी कॉल दिस मेमोरी एज कैशे, और समटाइम्स वी कॉल इट IAS. What is IAS? Immediate access store बेटा। So whatever the game is, for example मुझे अब GTA खेलना था तो GTA क्लास क्या होगा, मेरी रैम के अंदर आ जाएगा। अब GTA के साथ मैंने वेब ब्राउजर भी ओपन किया हुआ था, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम भी सेकेंडरी मेमोरी से उठ के क्लास वो आ जाएगा मेरे पास मेरी रैम के अंदर। तो whatever the programs you are executing, whatever the programs you are running, whatever the system software you are running, all the softwares are first loaded in RAM and then they are executed. तो इतना बताने का मकसद क्लास क्या था आपके पास? तो सॉफ्टवेयर इन रैम क्या होता है? ऑल एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स all application and system softwares are first या are loaded in RAM बेटा। ठीक है, even operating system is loaded in RAM। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहां पे लोड होता है? रैम के अंदर। सर ये कैसे? Whenever अगर आप लोग की 4 GB रैम है, आप चेक करेगा जाके वो 4 GB शो नहीं कर रहा होगा, वो इट विल बी शोइंग समथिंग लेस लाइक 3.7,
3.6 शो करता है वो। क्यों? बिकॉज बाकी पोर्शन के अंदर उसने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर रखे हुए होते हैं, वो सिस्टम यूज कर रहा होता है आपका मेमोरी, दैट्स व्हाई वो आपको कम शो करता है। अवेलेबल रैम इट विल बी ऑलवेज लेसर देन द एक्चुअल रैम, बिकॉज in that portion system softwares are loaded and operating system is one of the system softwares बेटा। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग की रैम की अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब रैम की आई टोल्ड यू वी आर हैविंग टू टाइप्स। रैम की कितनी टाइप्स है हमारे पास? वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रैम। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड SRAM and the other type is called DRAM. So when we are talking about the SRAM, this is called static RAM and DRAM is dynamic RAM बेटा। अब मैं तो यूजुअली ये टॉपिक जो है एसरैम और डीरैम का अपने ओ लेवल के बच्चों को पढ़ा देता हूँ, बिकॉज अच्छी बात है ओ लेवल्स के बच्चों को भी क्लास यहाँ पे हमारे पास दे शुड नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसरैम एंड डीरैम, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन देयर न्यू बुक। उनकी जो एक न्यू बुक आई हुई है हमारे पास बाय सारा, लॉन्च्ड इन 2018, उस बुक में यहाँ पे डिफरेंसेस लिखवाए में। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हेलन विलियम वाली। हेलन विलियम के अंदर आपको एसरैम डीरैम आई थिंक नहीं है, वहां पे कवर अप नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ टीचर्स यहाँ पे आप लोग को एसरैम और डीरैम पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते, लेकिन जो भी है वी आर गोइंग टू स्टडी एसरैम वर्सेस डीरैम बेटा। सो एसरैम क्या होता है हमारे पास? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, डीरैम इज द डायनामिक रैम। अब क्या हुआ 2000 आई थिंक 19 था शायद 18 था, अब मैंने एक क्लास के अंदर जाके सवाल किया बच्चों से कि भाई एसरैम और डीरैम के दरमियान डिफरेंस बता दो। सो एवरीवन वाज क्वाइट, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे गुस्सा आ गया, बोला यार ये क्या मजाक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बच्चे से फोर्सफुली पूछ लिया, बेटा आप ही बताएं एसरैम और डीरैम, मतलब जो आता है बता दें। सो ही आंसर्ड सर स्टैटिक रैम रुकी रहती है, डायनामिक रैम सर चलती रहती है। सो बच्चे ऐसे भी क्लास डिफरेंसेस बता देते हैं कभी कभार। सो अपार्ट फ्रॉम जोक, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक रैम क्या होती है? दिस रैम इज मेड अप ऑफ flip flops, or we can simply say NAND gates. What are flip flop? अगर मैं आप लोगों को flip flop दिखाऊं, आप लोग A2 में पढ़ेंगे, these are actually class your flip flops. These are your flip flop, these are your logic circuits. तो ये लॉजिक सर्किट्स आप लोग पढ़ते हैं इन योर A2 लेवल। तो आपके पास your SRAM is made up of flip flops, and when we talk about the dynamic RAM, it is made up of capacitors and transistors. So class, since dynamic RAM is made up of capacitors and transistors as well, the main focus over here is for the capacitors. So data is stored
in the form of charges. अब आप लोग को पता है कैपेसिटर अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करें तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है. तो टू कीप DRAM, to keep the charges active, to keep the capacitor active, we need to constantly refresh DRAM. We need to refresh DRAM constantly. क्यों करना पड़ता है इसको रिफ्रेश? टू मेंटेन द चार्जेस को मेंटेन रखने के लिए वी नीड टू रिफ्रेश DRAM कॉन्स्टेंटली बेटा. Moreover, when we talk about the SRAM, no need to refresh because data is already in binary. After this, एक और डिफरेंस हमारे पास यहां पर ये आता है कि DRAM needs more power. इसको ज्यादा पावर चाहिए होती है. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सर्किट्स. और ये एक्स्ट्रा सर्किट्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा सर्किट्स क्या होते हैं? जो रिफ्रेशिंग के लिए आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं, दो सर्किट्स आर द एक्स्ट्रा सर्किट्स. मतलब रिफ्रेशिंग के लिए भी तो आपको कोई सर्किट चाहिए होगा. तो जो रिफ्रेश कर रहा है आपके DRAM को कॉन्स्टेंटली, वो सर्किट आपके पास एक्स्ट्रा सर्किट्स होते हैं. ठीक है. मोर ओवर, dynamic RAMs are more faster and their circuit is more complex and further they are more expensive beta. And when we talk about the dynamic RAM, तो डायनेमिक रैम के अंदर एक डिफरेंस आप लोग को और पता होना चाहिए, दैट इज more amount of data can be stored in DRAM because it has more density. Density क्या होती है इन मेमोरी? Density is actually amount of data that can be stored per unit area. So DRAM की डेंसिटी जो होती है that is more as compared to
as compared to SRAM beta. So that's why DRAM can store more amount of data. लेकिन हमारे पास ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं इसके. So these are the major differences between dynamic RAM and static RAM. ये सारे डिफरेंस क्लास आप लोग को याद होने चाहिए और यहाँ पे हमारे पास रैम का पार्ट कंप्लीट होता है. We have seen the software in RAM, we have seen the definition for the RAM, we have seen how the process of the execution goes on, and what are the differences between the SRAM and the DRAM. Moving forward, now let's talk about the ROM stuff. ROM की बात करते हैं अब जरा. ROM in an easy case called read only memory. एंड अगेन कुछ पहले जनरल बातें कर लेते हैं. परमानेंट मेमोरी. फर्दर और क्या होता है इसके लिए हमारे पास? यूज्ड नहीं, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल. ओनली रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड. ठीक है, so we can only perform the read operation in ROM, nothing more, nothing less बेटा. Now अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है इसके सारे बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे. दैट इज सॉफ्टवेयर इन ROM. You can write to Mac chat beta, software in ROM. Which software we use in ROM? Anyone? You can write to Mac chat beta. आप सबको पता ही होगा वैसे जनरली कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास इन ROM. एनीवन? कोई अच्छा गैस कर दे, कोई मसला नहीं है, गलत जवाब दे देंगे, कोई इशू नहीं है. ओके ठीक है. We have two answers, Rabil and Hassan. इन दोनों ने क्लास में आंसर किया है. At least they attempted. लेकिन अगेन वैसे पता होना चाहिए आप सबको, बड़ा बेसिक है. ओ लेवल में तो आप लोग को ये पढ़ाई जाती है सारी चीजें. ये तो बिल्कुल बेसिक है ओ लेवल्स की, बिल्कुल बेसिक्स. मतलब इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर. ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए था. खैर, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं है. एटलीस्ट आई गॉट 2 राइट आंसर्स इन सेक्शन 1, बट रिजल्ट आप लोग का अच्छा है ज्यादा. आप लोग जो टेस्ट हुआ था, योर एवरेज इज आई थिंक आप लोग की टेस्ट की 44 है. सेक्शन 1 की एवरेज थी वाज 41. Here, what are the softwares in ROM? Let me tell you. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता इसके अंदर. इसके अंदर होता है हमारे पास BIOS. BIOS is basic input output system, and more appropriately the software in ROM is एक इंस्ट्रक्शन होता है that is called bootstrap. This is the instruction used to load operating system in memory बेटा. तो bootstrap जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास, वो क्या करते हैं? दे आर द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस
आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लास कहां लोड करवाते हैं? आपकी मेमोरी के अंदर लोड करवाते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करवाते हैं। तो जनरली हम लोग जो जेनेरिक टर्म यूज करते हैं दैट इज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस के अंदर मोर स्पेसिफिकली जो इंस्ट्रक्शन जो कमांड होती है दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। दिस इज द कमांड दैट इज यूज्ड टू load the operating system in the memory. And for of course when we are talking about the memory we are talking about the RAM. तो आपकी रैम के अंदर लोड करवाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे अबाउट द टाइप्स ऑफ रोम। एज आई टोल्ड यू वी आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोम। तो सबसे पहली रोम आती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सिंपल रोम। दिस इज रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इस वाली रोम में क्या होता है? डेटा एंड instructions are installed by the manufacturer and cannot be changed. ठीक है, and this is only so क्लास आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन लिखता है एंड वंस द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो सिंपल रोम के अंदर आपका मैन्युफैक्चरर लिखता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। सेकंड रोम आती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड PROM. This is programmable read only memory. In this ROM, manufacturer provides multiple chips. अच्छा, एक्चुअली रोम जो है ना इट्स अ चिप। दिस चिप इज प्लेस्ड ऑन योर मदरबोर्ड। जिस तरह आपके पास रैम होती है तो सिमिलरली ये चिप जो है वो प्लेस कर दी जाती है ऑन योर मदरबोर्ड। लेकिन रैम जो है वो तो फ्लेक्सिबल होती है, आप उसको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट रोम इज फिक्स्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती है। अगर आप उसको रिमूव करना है देन आपको हीटेड रोलर्स उसके ऊपर से गुजारने पड़ते हैं। फिर आपके पास उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं अंदर से हीटिंग की वजह से। देन आप फिर वो समथिंग लाइक स्क्रू ड्राइवर टाइप की चीज से आप उसको ठक करके निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू चेंज द रैम रोम। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स मल्टीपल चिप्स विद multiple BIOS to system डेवलपर। वो मल्टीपल चिप्स और मल्टीपल बायोस देते हैं। आपका सिस्टम डेवलपर बहुत सारी बायोस को मल्टीपल चिप्स के अंदर प्रोग्राम करता है, चेक करता है, और जो वो एक दफा डिसाइड कर लेता है वंस programmed the data and instructions cannot be changed। तो एक दफा अगर आप लोग जब प्रोग्राम कर देते हैं, सिर्फ एक दफा आपको अलाउ करता है प्रोग्रामेबल रोम कि आप अपने चिप को, अपनी रोम को प्रोग्राम कर लें अपने हिसाब से, एंड वंस प्रोग्राम्ड देन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रोम बेटा। आफ्टर दिस वी आर हैविंग
EPROM. EPROM is erasable, programmable, read only memory. इसके अंदर क्या होता है? You can change data and instructions as many times as you want, but every time you need to remove the chip. ठीक है, तो आप अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को आप लोग चेंज कर सकते हैं एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, बट हर दफा आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी चिप को निकालना पड़ेगा और फिर वापस से लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, भले कोई सी भी रोम हो, सिंपल रोम हो, प्रोग्रामेबल रोम हो, ईपी रोम हो या ईपी रोम हो, यू कैन ओनली रीड द डाटा। आप सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आप लोग सब कंप्यूटर लैब में आए, आप लोगों ने क्या किया? यू डिसाइडेड टू इंस्टॉल लेट्स से फोटोशॉप। आप लोग इंस्टॉल नहीं कर पाए बिकॉज मैंने आप लोग के राइट्स नहीं दिए हुए थे, मैंने सिर्फ आप लोग को यूज करने के राइट्स दिए हुए थे। आई हैवंट गिवन यू द राइट्स टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स। सो आप लोगों ने मुझे बोला कि सर मुझे तो सॉफ्टवेयर चाहिए, फोटोशॉप चाहिए हमें। तो मैं बोला ठीक है बेटा, आप सब बाहर जाए लैब से। आप सबको मैंने लैब से बाहर किया, मैंने सारे सिस्टम्स के ऊपर क्या किया? फोटोशॉप को इंस्टॉल किया। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग द फोटोशॉप, मैंने फोटोशॉप क्लास इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या किया? मैंने वापस से आप लोग को बुला लिया। अब आप सब आ गए, आपने फोटोशॉप यूज कर लिया। अब आपने डिसाइड किया कि नहीं सर, अब हमें वर्ड चाहिए। तो अगेन यू डोंट हैव राइट्स टू इंस्टॉल वर्ड। ठीक है, तो दिस इज सेम एज इन केस ऑफ रोम। अगर आप लोगों को कोई चेंजेस करनी होती तो आप क्या करते हैं? अपना सिस्टम बंद करते हैं, आप चिप के अंदर चेंजेस करते हैं और फिर आप क्या करते हैं? वापस से सिस्टम ऑन करते हैं। व्हेन योर सिस्टम इज ऑन एंड रनिंग, अप एंड रनिंग, यू कैन ओनली रीड द डाटा। ये बात याद रखनी है, रोम के अंदर, रनिंग सिस्टम के अंदर आप कोई चीज राइट नहीं कर सकते। ठीक है, so this is the point that you should remember, beta. Now the last ROM that comes is called, बिल्कुल हैदर, EEPROM. This is electrically erasable, programmable, read only memory. So when we are talking about EEPROM, in this you can change data and instructions as many times as you want, because but yeah, without removing the chip. And again, remember the point, you can read only while system is on. तो भले वो ईपी रोम हो, भले वो रोम हो, कोई भी आपके पास रोम हो जाए, हम लोग डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं इन अ रोम बेटा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट रोम वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, जरा एक जोक भी सुना देता हूँ आप लोगों को, मैंने लास्ट सेक्शन में भी सुनाया था। Plus, whenever my system restarts,
मेरा कंप्यूटर कभी कभार क्लास के अंदर रीस्टार्ट हो जाता था, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू लाफ, वो हंसना शुरू कर देते थे। तो एनीवन, कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है कि बच्चे क्यों हंसते थे? एनीवन? हाँ, तो क्लास, दिस laptop was given to me by one of our ex prime ministers. कुछ डिस्टिंक्शन वगैरह आई थी मेरी तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, तो वहां पे उन्होंने मुझे अवार्ड किया था। अब मैं जब भी रीस्टार्ट करता हूँ ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोम के अंदर अपनी पिक्चर फीड करी हुई है। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीस्टार्ट, तो उनकी पिक्चर बड़ी बड़ी आ जाती, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम एंड ऑल दैट। सो स्टूडेंट यूज्ड टू लाफ कि भाई ये कहां से आ गया अचानक से। तो क्लास क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपना डाटा, अपने इंस्ट्रक्शंस क्या करे, रोम के अंदर फीड कर दिए। रोम के अंदर क्या किया, अपने इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिए। सो दैट इज द पॉइंट कि व्हेन वी राइट डाटा इन रोम, वी कैन नॉट चेंज द डाटा। सो लेट्स हैव एन ओवरलुक ओवर हियर। ओवरलुक, हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी की क्लासिफिकेशन देखी थी, एंड आज की क्लास के अंदर वी हैव कवर्ड दिस वाला पार्ट। हमने ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया है। कल की क्लास के अंदर इंशाअल्लाह होपफुली वी विल बी कवरिंग दिस पार्ट एज वेल, बिकॉज इतना कोई इसके अंदर ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हमें हार्ड डिस्क की इंटरनल वर्किंग देखनी है, हमें एसएसडीज की इंटरनल वर्किंग देखनी है बेटा, ठीक है। सो वी हैव सीन रैम, रैम के सॉफ्टवेयर्स इन रैम, हाउ द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, what is the difference between SRAM and DRAM, and what is ROM, what are the softwares in ROM, and what are different types of ROM. ठीक है, I think we don't have any questions. Okay, we have a question. हाँ रबील बेटा, I will be solving the past paper questions of internet communications in campus. ठीक है, जब हम लोग कैंपस में आ जाएंगे तो ऑन कैंपस हम लोग इंशाअल्लाह फिजिकल क्लास के अंदर अपनी पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं आप लोग को, इंटरनेट कम्युनिकेशंस के वन बाय वन सारे। ठीक है, तो क्लास के अंदर ये सॉल्व कर लेंगे, आसान है, कितना कोई मुश्किल नहीं है। मीनवाइल जब तक हम लोग ये अपना आगे कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक वी आर गुड, और आप लोग के मार्क्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो हाईएस्ट जिन बच्चों के मार्क्स आए आई विल बी टेलिंग यू, और आई विल बी अपडेटिंग द फाइल। आज मैं अपडेट कर दूंगा इंशाअल्लाह, तो आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा फिर मैं, ठीक है। चलें, थैंक यू एवरीवन, इंशाअल्लाह अगली क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आज इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू।